السلام علیکم ناظرین، میں ہوں طارق گرایا اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو قلم راز۔ جادو کی دنیا کی ہولناک حقیقتوں پر مبنی ہماری سیریلز میں آج ہم ایک ایسی قسم کا ذکر کریں گے جو انسان کو زندہ درگور کر دیتی ہے۔ اسے سحر مرض یا بیماری کا جادو کہا جاتا ہے۔ سحر خمول میں آپ نے دیکھا کہ انسان سست ہو جاتا ہے، لیکن سحر مرض اس سے کہیں زیادہ خطرناک ہے۔ اس جادو میں جادوگر خبیث جنات کو انسان کے خون میں داخل کر دیتا ہے، جو جسم کے کسی خاص حصے یا پورے اعصابی نظام پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ مریض دن بہ دن موت کی طرف جاتا ہے، ہڈیاں گلنے لگتی ہیں، چہرہ کالا پڑ جاتا ہے، مگر دنیا کا بڑے سے بڑا ڈاکٹر اور جدید ترین مشین اس بیماری کو پکڑنے میں ناکام رہتی ہے۔ کہانی شروع ہونے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ہماری آج کی کہانی میں ایک ایسی ہی لڑکی کی ہے جس کا نام زویا تھا۔ زویا جو اپنے گھر کی رونق اور اپنے والدین کی آنکھوں کا تارا تھی۔ وہ نہ صرف دیکھنے میں بے حد خوبصورت تھی بلکہ اس نے حال ہی میں یونیورسٹی سے اعلیٰ تعلیم مکمل کر لی تھی۔ محلے اور خاندان میں ہر کوئی اس کی شرافت اور ذہانت کی مثالیں دیتا تھا۔ زویا کے لیے رشتوں کی لائن لگی ہوئی تھی۔ ہر خاندان کی خواہش تھی کہ زویا ان کے گھر کی بہو بنے، لیکن زویا کے دل میں اپنی یونیورسٹی کے ایک ساتھی ذیشان کی جگہ تھی جو اس کے ساتھ ہی پڑھتا تھا۔ دونوں کے خاندان اس رشتے پر راضی تھے اور جلد ہی ان کی زندگی کا ایک نیا باب شروع ہونے والا تھا۔ لیکن جہاں خوشیاں ہوتی ہیں وہیں حسد کی آگ بھی سلگ رہی ہوتی ہے۔ ان کے قریبی رشتہ داروں میں ایک ایسی عورت تھی جس کا سینہ زویا کی اس کامیابی اور خوبصورتی کو دیکھ کر جلتا تھا، جو چاہتی تھی کہ یہ سب برباد ہو جائے۔ وہ عورت اکثر ایسے عاملوں کے پاس جاتی تھی جن کا کام گھر بسانا نہیں بلکہ لوگوں کے گھر اجاڑنا تھا۔ ایک کالی اندھیری رات میں اس عورت نے زویا کی بربادی کا فیصلہ کیا اور ایک ایسے جادوگر کی دہلیز پر قدم رکھا جس کا ہر لفظ کفر اور جس کا ہر عمل شیطانی تھا۔ یہیں سے زویا کی زندگی میں وہ اندھیرا شروع ہوا جس کا کسی نے تصور بھی نہ کیا تھا۔ رات کا پچھلا پہر تھا جب شہر کی رونقیں دم توڑ چکی تھی۔ تب ایک تنگ و تاریخ کوٹری میں انسانیت کا سودا ہو رہا تھا۔ زبیدہ جس کے دل میں حسد کا زہر برسوں سے پل رہا تھا، آج ایک بدنام زمانہ کالے جادوگر کے سامنے بیٹھی تھی۔ جادوگر کی آنکھیں سرخ تھیں اور اس کے گرد عجیب و غریب غلیظ چیزیں بکھری پڑی تھی۔ زبیدہ نے جادوگر کے سامنے زویا کی ایک تصویر اور اس کے دوپٹے کا ایک ٹکڑا رکھا۔ جادوگر نے تصویر کو غور سے دیکھا اور ایک شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، اس لڑکی کی خوبصورتی ہی اس کی دشمن بنے گی۔ میں اس پر وہ وار کروں گا کہ اسے اپنی شکل سے ہی نفرت ہو جائے گی۔ جادوگر نے زویا کے دوپٹے سے ایک چھوٹی سی گڑیا تیار کی اور اس پر کچھ کفریہ کلمات پڑھنا شروع کیے۔ اس نے ایک لمبی سوئی اٹھائی اور اسے گڑیا کے چہرے اور سینے میں پیوست کر دیا۔ یہ سحر مرض کی وہ قسم تھی جہاں جنات کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ مریض کے خون کے خلیوں میں حملہ کریں اور اس کے چہرے کی رنگت چھین لیں۔ جادوگر نے زبیدہ سے کہا، جاؤ اب یہ گڑیا کسی پرانے قبرستان کی ایسی مٹی میں دبا دو جہاں کسی کا پاؤں نہ پڑے۔ جیسے جیسے یہ مٹی میں گلے گی وہ لڑکی اندر ہی اندر گلتی چلی جائے گی۔ ادھر زویا کے گھر میں سب کچھ معمول کے مطابق تھا، لیکن ایک صبح جب زویا سو کر اٹھی تو اسے لگا کہ اس کا جسم منو وزنی ہو گیا ہے۔ اس نے جب آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا تو وہ ٹھٹک کر رہ گئی۔ وہ چہرہ جو گلاب کی طرح مہکتا تھا آج کچھ کملایا ہوا سا لگ رہا تھا۔ اسے لگا شاید پڑھائی کی تھکن ہے یا نیند پوری نہیں ہوئی، لیکن دن گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ تھکن ایک لا علاج اذیت میں بدلنے لگی۔ زویا کو اب ہر وقت سینے میں گھٹن محسوس ہوتی، اسے لگتا جیسے کوئی اس کا گلا گھونٹ رہا ہے۔ اس کی بھوک اڑ گئی اور اس کا پرکشش رنگ جس کی سب مثالیں دیتے تھے اب آہستہ آہستہ زردی سے سیاہی کی طرف مائل ہونے لگی۔ زویا کے والدین پریشان ہو گئے۔ انہوں نے اسے شہر کے بہترین ڈاکٹروں کو دکھایا۔ خون کے ٹیسٹ ہوئے، ایکس رے ہوئے، لیکن ہر رپورٹ میں ایک ہی بات لکھی تھی، مریضہ بالکل نارمل ہے۔ مگر زویا نارمل نہیں تھی۔ اس کی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے پڑ چکے تھے، اس کی آواز بیٹھ گئی تھی اور وہ جو کبھی پورا گھر سر پر اٹھا لیتی تھی اب ایک اندھیرے کمرے میں پڑی دیواروں کو تکتی رہتی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ اس کی ہڈیوں میں دوڑنے والا یہ درد کسی وائرس کا نہیں بلکہ ان شیطانی کلمات کا ہے جو 7 پردوں میں چھپ کر اس کے
के खिलाफ पड़े गए थे। वक्त तेजी से गुजर रहा था, लेकिन जोया के लिए हर गुजरता लम्हा एक नई क़यामत बनकर टूट रहा था। वो लड़की जो चंद माह पहले तक अपनी क्लास की सबसे मुतहरक तालबा थी, अब व्हील चेयर पर अस्पताल के एक वार्ड से दूसरे वार्ड में मुंतकिल हो रही थी। डॉक्टरों की एक पूरी टीम जोया के केस पर सर जोड़े बैठी थी। MRI, CT स्कैन और खून के दर्जनों टेस्ट किए जा चुके थे, लेकिन तिब की दुनिया की जदीद तरीन मशीनें जोया के जिस्म में लगी इस आग को ढूंढने में नाकाम थीं। डॉक्टर हैरान थे कि जोया का वजन इतनी तेजी से क्यों गिर रहा है, जैसे कोई इसे अंदर से खा रहा हो। अब जोया की हालत ये हो चुकी थी कि इसकी खूबसूरत आंखें गड़ों में धंस गई थी। इसका रंग जिस पर चांद का गुमान होता था, अब कोयले की तरह स्याह होता जा रहा था। इसे देखकर ऐसा लगता था जैसे इसे टीबी की आखिरी स्टेज हो, या जैसे इसके जिस्म से जिंदगी निचोड़ ली गई हो। एक शाम जोया का भाई, जो अपनी बहन से बहुत प्यार करता था, डॉक्टर के कैबिन में दाखिल हुआ। इसके हाथ में मेडिकल रिपोर्ट्स का बंडल था। इसने तड़प कर डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब, मेरी बहन मर रही है। आप कहते हैं सब नॉर्मल है, अगर सब ठीक है तो वो उठ क्यों नहीं पा रही? इसका रंग काला क्यों हो गया है? डॉक्टर ने लंबी आह भरी और कहा, हमने अपनी पूरी कोशिश कर ली है, लेकिन मेडिकल साइंस के पास इसका कोई जवाब नहीं है। हमें डर है कि ये कोई ऐसी नफ्सियाती उलझन ना हो जो इसके जिस्म को खत्म कर रही है। आप इसे किसी माहिर नफ्सियात के पास ले जाएं। माहिर नफ्सियात ने बारी बार कम दुआएं शुरू कर दी, लेकिन इन दुआओं ने जोया को मजीद नाडाल कर दिया। वो अब हर वक्त बेहोशी की हालत में पड़ी रहती। इसके ख्वाब अब डरावनी फिल्मों से ज्यादा होलनाक हो चुके थे। इसे ख्वाब में काली बिल्लियां, गंदे नाले और ऐसे साए नजर आते जो इसका गला दबाते थे। इसी दौरान जुबैदा, जिसने ये सारा खेल रचाया था, अक्सर जोया के घर आती। वो जोया की हालत देखकर अंदर ही अंदर खुश होती, लेकिन बाहर से झूठी हमदर्दी के आंसू बहाती। वो कहती, हाय बेचारी, मालूम नहीं इसे किसकी नजर लग गई है, इसका तो अब बचना मुश्किल लग रहा है। जोया के वालिदैन टूट चुके थे। जीशान, जिसने जोया का हाथ थामने का वादा किया था, वो भी इसे इस हाल में देखकर बेबस था। इसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी मोहब्बत को इस अनजानी मौत से कैसे बचाए। घर में मायूसी की धुंध फैल चुकी थी। जोया अब मौत की दहलीज पर खड़ी थी, लेकिन अल्लाह की रहमत अभी बाकी थी। इस अंधेरे में रोशनी की एक किरण फूटने वाली थी। एक ऐसी मुलाकात होने वाली थी जो जोया की तकदीर बदलने वाली थी। मायूसी जब हद से बढ़ जाती है तो अल्लाह की रहमत किसी न किसी सूरत में रास्ता दिखा ही देती है। जोया की हालत अब ये थी कि इसका जिस्म हड्डियों का ढांचा बन चुका था और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। इसे अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया था, क्योंकि तिब्बी इमदाद अब बेअसर हो चुकी थी। एक शाम जोया का भाई और इसकी वालदा इसे व्हील चेयर पर सहारा देकर अस्पताल के मरकजी गेट से बाहर ला रहे थे। जोया के चेहरे पर पड़ी चादर के पीछे से इसकी बेनूर आंखें जिंदगी की आखिरी उम्मीद ढूंढ रही थी। उसी वक्त अस्पताल के गेट के करीब एक सफेद रीछ बुजुर्ग खड़े थे, जिनके चेहरे पर एक अजीब सा नूर और इत्मीनान था। बुजुर्ग शायद अपने किसी अजीज की तीमारदारी के लिए वहां आए थे, लेकिन जैसे ही इनकी नजर जोया पर पड़ी वो ठटक कर रह गए। इनकी तजर्बा कार नजरों ने भांप लिया कि इस बच्ची के जिस्म में जो जहर दौड़ रहा है वो किसी जरासीम का नहीं बल्कि शैतानी दुनिया का है। जब जोया का भाई इसके करीब से गुजरा तो बुजुर्ग ने नरमी से इसके कंधे पर हाथ रखा और पूछा, बेटा इस बच्ची को क्या हुआ है? भाई ने रोती हुई आवाज में जवाब दिया, बाबा जी हमें खुद नहीं मालूम, डॉक्टर कहते हैं सब ठीक है, लेकिन मेरी बहन दम तोड़ रही है। बुजुर्ग ने जोया के जर्द और स्याही माइल चेहरे को देखा और एक लंबी आह भरी। वो धीरे से बोले, बेटा दुनिया की मशीनें सिर्फ जिस्म का नुक्स बताती हैं, रूह पर होने वाले जख्मों को नहीं देख सकती। इस बच्ची पर किसी हासिद ने सहरे मर्ज का वार किया है। इसके खून में जादू के खुलिये दौड़ रहे हैं, इसलिए मेडिकल साइंस खामोश है। जोया की माँ ने तड़प कर बुजुर्ग के हाथ थाम लिए और इल्तिजा की, बाबा जी अल्लाह के लिए कुछ करें, हमारी बच्ची मर रही है। बुजुर्ग ने तसल्ली दी और कहा, घबराएं नहीं, अल्लाह का कलाम हर
जादू से बड़ा है। कल सुबह इसे मेरे पास लेकर आना, हम देखेंगे कि बातल की ये ग्रहें कितनी मजबूत हैं। इस रात जोया को गैर मामूली तकलीफ हुई। शायद जादू के मौकलात को अंदाजा हो गया था कि अब इनका सामना हक के किसी सिपाही से होने वाला है। जोया को बार बार ख्वाब में वही काला धागा जो अब इसकी गर्दन के गिर्द लिपट रहा था। वो चीखती थी मगर आवाज नहीं निकलती थी। अगली सुबह उम्मीद और खौफ के मिले जुले जज्बात के साथ जोया का खानदान इसे लेकर इस जगह पहुंचा जहां बुजुर्ग ने बुलाया था। ये एक सादा सा कमरा था जहां से कुरान की तिलावत की धीमी आवाज आ रही थी। यहीं से जोया के इलाज का वो मरहला शुरू होना था जो जादूगर के महलों में जलजला ला देने वाला था। कमरे में एक अजीब सा सुकून था मगर ये तूफान से पहले की खामोशी थी। बुजुर्ग ने जोया के भाई से कहा कि वो इसे जाए नमाज के करीब बैठा दे। जोया की माँ एक कोने में तस्बीह पढ़ रही थी जबकि जीशान दरवाजे पर खड़ा कांपते दिल के साथ ये सब देख रहा था। बुजुर्ग ने अपने करीब पानी का एक बड़ा बर्तन रखा और बुलंद आवाज में औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ी। जैसे ही उन्होंने तिलावत कुरान शुरू की, का दर्जा हरारत जैसे अचानक गिर गया हो। बुजुर्ग ने सूरह यूनुस की आयत नंबर 81 पढ़नी शुरू की। इस आयत का तर्जमा ये है, मूसा ने कहा कि जो कुछ तुम लाए हो ये जादू है, अल्लाह इसे अभी बातिल कर देगा। जैसे ही बुजुर्ग ने ये अल्फाज दोहराए, जोया के साकत जिस्म में जैसे बिजली दौड़ गई। इसने एक जोरदार चीख मारी और इसका जिस्म व्हील चेयर से उछलने लगा। इसकी आंखें जो अब तक मुर्दा लग रही थीं सुर्ख हो गईं और वो एक ऐसी आवाज में हुर्राने लगी जो इसकी अपनी नहीं थी। बुजुर्ग ने अपनी आवाज मजीद बुलंद कर दी और सूरह सफात की इब्तदाई आयत पढ़नी शुरू कर दी। जोया या इसके अंदर छुपा हुआ खबीस साया तड़प कर बोला, इसे छोड़ दो, इसे रुक जाने को कहो, ये कलाम हमें जला रहा है। बुजुर्ग ने तिलावत नहीं रोकी। उन्होंने पानी पर दम किया और चंद कतरे जोया के चेहरे पर छिड़के। पानी गिरते ही जोया के जिस्म से जैसे धुआं उठने लगा। वो हाँफने लगी और इसका सर एक तरफ ढलक गया। बुजुर्ग ने तिलावत मुकम्मल की और गहरा सांस लेते हुए कहा, तशखीस मुकम्मल हो चुकी है। इस बच्ची पर सहरे मर्ज की वो किस्म है जिसमें जादूगर ने जिन्नात को इसके जिगर और खून के खुलियों में बैठा दिया है। ये जिन्नात इसका खून पी रहे हैं और इसके चेहरे की रौनक निचोड़ रहे हैं। अगर इसका इलाज कुरान से ना किया जाता तो जादूगर का इरादा इसे एक हफ्ते के अंदर कब्र तक पहुंचाने का था। उन्होंने दम किया हुआ पानी जोया के भाई को दिया और कहा, ये पानी से पिलाएं भी और इससे गुस्ल भी करवाएं। लेकिन याद रहे ये जंग अभी शुरू हुई है। जैसे जैसे कुरान का असर बढ़ेगा जादूगर मजीद ताकत से वार करेगा। आपको हिम्मत नहीं हारनी। जोया के घर वालों को अब एक लंबी लड़ाई लड़नी थी, लेकिन क्या वो जादूगर की अगली चाल का मुकाबला कर पाएंगे? और जुबैदा जो ये सब देख रही थी वो अपनी साजिश को नाकाम होते देख कर अब क्या नया रुख देगी। हक और बातिल की इस जंग में अब एक नया मोड़ आ चुका था। जादूगर जो अपने तारीख ठिकाने में बैठा जोया की मौत का इंतजार कर रहा था, इसे अचानक अपनी शैतानी कुव्वतों के कमजोर होने का एहसास हुआ। इसे पता चल गया कि कोई अल्लाह का बंदा जोया के गिर्द कुरानी आयात का हसार कायम कर रहा है। जादूगर गुस्से से चहका, जिसने मेरी गिरहें खोलने की कोशिश की है मैं इसे भी नहीं छोड़ूंगा। इसने गलीज चीजों से भरा एक नया थाल तैयार किया और अब की बार जोया के साथ साथ इसके घर वालों पर भी नफसियाती वार शुरू कर दिए ताकि वो इलाज अधूरा छोड़ दें। बुजुर्ग के बताए हुए तरीके के मुताबिक जोया को दम किया हुआ पानी पिलाया जा रहा था और घर में सूरह बकरा की तिलावत बुलंद आवाज में चलती थी। लेकिन जैसे ही इलाज ने असर दिखाना शुरू किया, घर में अजीबो गरीब वाकयात पेश आने लगे। कभी किचन में पड़े बर्तन खुद ब खुद गिर कर टूट जाते तो कभी दीवारों पर खून के छींटे नजर आते। जोया की हालत भी मजीद बिगड़ती दिखाई दे रही थी। इसे शदीद बुखार रहने लगा। वो बेहोशी में ऐसे नाम लेने लगी जिन्हें कोई नहीं जानता था। जोया की माँ घबरा गई, बेटा ये इलाज कर रहे हैं या दुश्मनी? हमारी बच्ची तो मजीद निढाल होती जा रही है। जुबैदा जो मौका की तलाश में थी फौरन जोया की माँ के पास पहुंची। इसने जहरीले लहजे में कहा, बहन मैंने पहले ही कहा था कि इन
गोलियों के चक्कर में ना पड़ो। देखो तुम्हारी बेटी की हालत पहले से भी बदतर हो गई है, कहीं ऐसा ना हो कि इसे जला ही डालें। मेरे जानने वाले एक बड़े आमल हैं, वो एक ही झाड़ फूंक से सब ठीक कर देंगे। ये सहरे मर्ज का वो नाजुक मरहला होता है जहाँ जादूगर मरीज के घर वालों के दिलों में वसवसे डालता है ताकि वो अल्लाह के कलाम पर भरोसा छोड़कर दोबारा शिरक की दलदल में जा गिरे। जोया का भाई जो अपनी बहन की तकलीफ देखकर टूट चुका था, दौड़ा हुआ बुजुर्ग के पास गया। बुजुर्ग ने इसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, बेटा जब गंदे कपड़े को धोया जाता है तो पहले मैल ऊपर आती है और पानी गंदा दिखाई देता है। ये जादूगर की आखिरी कोशिश है कि आप लोग डर कर पीछे हट जाएं। याद रखो जो जितना तड़प रहा है समझो इस पर कुरान की चोट इतनी ही गहरी लग रही है। बुजुर्ग ने इसे तसल्ली दी और बेरी के पत्तों का एक खास अमल बताया। उन्होंने कहा, आज रात जोया को इन पत्तों के पानी से गुस्ल देना, इंशाल्लाह जादू की जड़ें कटना शुरू हो जाएंगी। मगर क्या जोया की माँ जुबैदा की बातों में आ जाएगी? क्या जादूगर का ये नया वार जोया की जिंदगी का दिया गुल कर देगा? बुजुर्ग ने जोया के भाई को जिस अमल की हिदायत की थी वो सदियों पुराना और मसनून इलाज था। बेरी के साथ सब्ज पत्ते जिन्हें दो पत्थरों के दरमियान पानी में शामिल किया गया था और इस पर आयतल कुर्सी और मौजू तैन की तलावत की गई थी। ये पानी सिर्फ पानी नहीं बल्कि जादू के मौकुलात के लिए एक आग बन चुका था। जोया की माँ ने कांपते हाथों से जोया को इस पानी में गुस्ल करवाना शुरू किया। जैसे जैसे पानी जोया के जिस्म पर गिर रहा था कमरे की फिजा बोझल होती जा रही थी। जोया जो कई दिनों से बेहोश थी अचानक तड़पने लगी। इसकी आंखें बंद थी मगर वो एक ऐसी जुबान से बुड़बड़ा रही थी जो किसी की समझ में नहीं आ रही थी। अचानक जोया को शदीद मतली महसूस हुई और इसे एक काली कै आई। इस उल्टी के साथ कुछ ऐसे काले धागे और बाल बरामद हुए जो एक अजीब सी गिराह में बंधे हुए थे। ये देखकर जोया की माँ की चीख निकल गई। ये वो गलीज अशिया थी जो जादूगर जिन्नात के जरिए जोया के मैदे और खून में पहुंचाई गई थी। इधर जादूगर के ठिकाने पर जैसे कहराम मच गया। जादूगर अपने मसले पर बैठा हुआ उछलने लगा। इसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी ने इसके अपने जिस्म पर गर्म खोलता हुआ पानी डाल दिया हो। इसकी जलाई हुई शमें खुद ब खुद बुझ गई और इसके पालतू काले जानवर खौफ से चीखने लगे। गुस्ल के बाद पहली बार महीनों बाद जोया की सांसें हमवार हुई। वो एक गहरी और पुरसकून नींद सो गई। इसके चेहरे की वो होलनाक स्याही जो कोयले की तरह जम चुकी थी अब कुछ हल्की पड़ती महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मौत के साये को इसके वजूद से पीछे धकेल दिया हो। अगली सुबह जब जोया ने आंखें खोली तो इसने अपनी माँ को पहचान लिया। इसने धीमी आवाज में सिर्फ एक लफ्ज कहा, मी। ये लफ्ज सुनकर घर वालों की आंखों से खुशी के आंसू जारी हो गए। महीनों की अंधेरी रात के बाद ये जिंदगी की पहली किरण थी। लेकिन दूसरी तरफ जुबैदा के घर में सफे मातम बिछी थी। जादूगर का पैगाम इसे मिल चुका था। ये शिकंजा टूट रहा है। अगर इस लड़की को मुकम्मल शिफा मिल गई तो ये जादू पलट कर तुम पर आएगा। जुबैदा अब खौफ से लर्ज रही थी। इसे समझ नहीं आ रहा था कि वो जोया के इलाज को कैसे रोके। बुजुर्ग ने जोया के भाई को खबरदार किया था, जादू की जड़ें कट गई हैं मगर अभी मुकम्मल सफाया बाकी है। जब जादू पलटता है तो वो जादूगर और करवाने वालों को ढूंढता है। अब क्या होगा? क्या जोया मुकम्मल तौर पर ठीक हो पाएगी और वो जादू जो जोया के खून से निकला है वो अब किस तरफ रुख करेगा? रूहानियत का एक मुसलमान असूल है कि जब हक की ताकत बातिल को पिछाड़ती है तो शर पलट कर अपने मरकज की तरफ जाता है। जोया के जिस्म से जादू की जड़ें कट चुकी थी और वो शैतानी मौकुलात जो अब तक जोया का खून पी रहे थे अब बेकाबू होकर अपने आका यानी इस जादूगर की तरफ लपके जिसने इन्हें इस कैद में डाला था। काले जादूगर के ठिकाने पर अब चीखो पुकार का आलम था। वो जिन्नात जिन्हें वो अपना गुलाम समझता था अब इसे ही नोचने लगे थे। जादूगर तड़प रहा था। इसका अपना जिस्म इसी तरह स्याह होने लगा था जैसे इसने जोया का किया था। वो चिल्लाया, जुबैदा तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। जिस लड़की पर वार किया था इसके पीछे कोई बड़ी हस्ती खड़ी है जिसके कलाम ने मुझे जला डाला है। इधर जुबैदा जो अपने आलीशान घर में सोफे पर बैठी जोया की मौत की खबर का इंतजार कर रही थी। इसे अचानक महसूस हुआ कि इसके अपने कमरे की दीवारें इस पर गिर रही हैं। इसे
अपनी बेटी का चेहरा जोया की तरह जर्द और फिर काला होता दिखाई देने लगा। ये इसके अपने ही बोए हुए कांटे थे जो अब इसकी अपनी राहों में बिखर रहे थे। वो जादूगर जो सहरे मर्ज बनकर जोया के जिस्म में दाखिल हुआ था, अब जुबैदा के घर में दाखिल हो चुका था। इसे अपने पैरों के नीचे सांप रेंगते महसूस होते और इसके कानों में जादूगर की वो चीखें गूंजने लगी जो वो इस फोन पर सुना रहा था। दूसरी तरफ जोया के घर में जैसे बहार लौट आई थी। बुजुर्ग की हदायत के मुताबिक अब जोया को अजवा, खजूर और कलवंजी का इस्तेमाल शुरू करवा दिया गया था। वो लड़की जो चंद दिन पहले तक व्हील चेयर से नहीं उठ सकती थी, आज अपनी माँ का हाथ थाम कर कमरे में चंद कदम चली। इसके चेहरे की वो स्याही जो जादूगर की वजह से थी अब साफ हो रही थी और इसके नीचे से वही पुराना गुलाबी रंग झलकने लगा था। जोया ने जब आईने में खुद को देखा तो इसकी आंखों से शुक्राने के आंसू जारी हो गए। इसे ऐसा लगा जैसे वो दोबारा पैदा हुई है। बुजुर्ग ने जोया के भाई को पास बुलाकर एक आखिरी नसीहत की, बेटा अल्लाह ने तुम्हारी बहन को नई जिंदगी दी है, लेकिन याद रखना हसद करने वाले अब भी करीब हो सकते हैं। अब तुम लोगों का काम है कि अपने घर को जिक्र इलाही से आबाद रखो ताकि कोई शैतान दोबारा इस दीवार में शगाफ न कर सके। जोया का भाई हैरान था कि आखिर वो कौन है जिसने इनकी हंसती खेलती जिंदगी में ये जहर घोला था। बुजुर्ग ने खामोशी से इशारा किया, तुम्हें ढूंढने की जरूरत नहीं, जिसने आग लगाई है वो इसकी तपश से खुद ही बाहर निकल आएगा। क्या जुबैदा का राज फाश हो जाएगा और जब पूरा खानदान जादूगर और जादू करवाने वाले के सामने आएगा तो अंजाम क्या होगा। कहते हैं कि गुनाह जितना भी छुप कर किया जाए एक दिन अपनी गवाही खुद देता है। जोया के घर में जहाँ कह के लौट आए थे वही अचानक जुबैदा का दाखिला सबको हैरान कर गया, लेकिन ये वो जुबैदा नहीं थी जो पहले तकब्बर से चलती थी। इसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें हलकों में धंसी हुई थीं और इसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। वो आते ही जोया की माँ के कदमों में गिर गई और दुआएं देने लगी, मुझे माफ कर दो, अल्लाह के लिए मुझे माफ कर दो, मेरी बेटी अस्पताल में है, डॉक्टर कह रहे हैं कि इसके जिस्म का रंग काला पड़ रहा है और इसे वो दौरे पड़ रहे हैं जो जोया को पड़ते थे। जोया की माँ ने इसे उठाने की कोशिश की, जुबैदा तुम ये क्या कर रही हो, तुम्हारी बेटी को क्या हुआ। जुबैदा तड़प कर बोली, वो जादू मैंने जोया के लिए करवाया था वो अब मेरी बेटी पर पड़ गया है, जादूगर मर चुका है, इसे इसके अपने जिन्नात ने मार डाला और अब वो साए मेरे घर के पीछे पड़े हुए हैं। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। जोया का भाई जो अपनी बहन की तरफ देख कर कई रातें रोया था, इसका गुस्सा आसमान को छूने लगा, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहता बुजुर्ग ने इसे इशारा करके रोक दिया और जुबैदा की तरफ देखकर बोले, तुमने हसद की आग जलाई थी जुबैदा, तुम भूल गई थी कि अल्लाह की लाठी बेआवाज है। जादूगर तो मर गया लेकिन इसका शर अब भी तुम्हारी अपनी दहलीज पर दस्तक दे रहा है। जोया जिसने अपनी जिंदगी के खूबसूरत तरीन दिन इस बीमारी की नजर कर दिए थे, इसने अपनी दुश्मन की ये हालत देखी तो इसकी आंखों में आंसू आ गए। इसने दुख भरे लहजे में कहा, अल्लाह मैंने तो आपका कभी बुरा नहीं चाहा था, फिर आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। जुबैदा के पास कोई जवाब नहीं था सिवाय पछतावे के। बुजुर्ग ने जुबैदा से कहा, तौबा के दरवाजे खुले हैं, लेकिन याद रखो जादू का उल्टना अल्लाह की तरफ से वार्निंग है। जाओ और अल्लाह से रो कर माफी मांगो और अपनी बेटी के लिए वही कुरानी इलाज करो जो जोया के लिए किया गया, शायद तुम्हारी तौबा कबूल हो जाए। जुबैदा जो जोया को मिटाने निकली थी अब खुद मिट रही थी। इसका नाम पूरे खानदान में उछल चुका था। ये सहरे मर्ज का वो पहलू है जहाँ जादू करने वाला न सिर्फ आखिरत बर्बाद करता है बल्कि दुनिया में भी रुसवाई इसका मुकद्दर बनती है। जोया अब पूरी तरह खतरे से बाहर थी, लेकिन इस वाकया ने इसे एक नई बसीरत दे दी थी। इसे समझ आ गया था कि इंसानी शक्ल में छुपे हुए भेड़िए कितने खतरनाक हो सकते हैं। लेकिन क्या जोया की जिंदगी दोबारा पहले जैसी हो पाएगी? और जिशान जो इस कड़े वक्त में भी इसके साथ खड़ा रहा, इसका और जोया का सफर अब किस मोड़ पर जाएगा? कहते हैं कि रात जितनी तवील और काली हो, सुबह इतनी ही रोशन और उम्मीद अफजा होती है। जोया के घर की फजाओं से अब खौफ और बीमारी के साए छट चुके थे। वो लड़की जिसके बारे में डॉक्टरों ने कह दिया था कि ये अब कभी अपने पैरों पर नहीं खड़ी हो सकेगी, आज वही जोया अपने घर के सेहन में लगे पौधों को पानी दे रही थी। इसका रंग न सिर्फ पहले जैसा गुलाबी हो चुका था बल्कि इसके चेहरे पर अब एक ऐसी रूहानी चमक थी जो जादू से पहले भी नहीं थी। बुजुर्ग ने आखिरी बार जोया के घर का दौरा किया। उन्होंने जोया के सर पर शफकत से हाथ रखा और कहा, बेटी अल्लाह ने तुम्हें
आजमाइश से गुजार कर कुंदन बना दिया है। ये जादू सिर्फ तुम्हारे जिस्म को खत्म करने नहीं आया था, बल्कि तुम्हारे पूरे खानदान को अल्लाह के कलाम के करीब लाने का जरिया बना है। अब कभी अपनी सुबह और शाम की दुआएं और तिलावते कुरान को मत छोड़ना, क्योंकि ये मोमन का वो सार है जिसे दुनिया का कोई जादूगर नहीं तोड़ सकता। दूसरी तरफ जुबैदा का घर इबरत का नमूना बन चुका था। इसकी बेटी अगरचा इलाज के बाद मौत के मुंह से तो निकल आई, लेकिन जादूगर के असरात ने इसके चेहरे और सेहत पर ऐसे निशानात छोड़ दिए थे जो जिंदगी भर इसे इसकी माँ के गुनाह की याद दिलाते रहेंगे। जुबैदा अब लोगों से नजरें मिलाने के काबिल नहीं रही थी। इसने हसद की जो आग जोया के लिए जलाई थी, इसमें इसका अपना सुकून और वकार जल कर राख हो गया था। चंद माह बाद जोया और जिशान का निकाह हुआ। जिशान ने साबित कर दिया कि सच्ची मोहब्बत सिर्फ खूबसूरती की मोहताज नहीं होती, बल्कि वो मुश्किल वक्त में डाल बनकर साथ खड़ी होती है। शादी की इस सादा तकरीब में बुजुर्ग ने निकाह पढ़ाया और सब ने मिलकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। नाज़रीन, जोया की ये कहानी कोई फर्जी दास्तान नहीं, बल्कि हमारे मुआशरे का वो तलख सच है जहाँ हसद और काला इल्म हंसते बसते घरों को उजाड़ देता है। तहरे मर्ज एक खामोश कातिल है, लेकिन याद रखिए अल्लाह का कलाम हर बीमारी और हर जादू का तोड़ है। अगर आपके गिरदोनवा में भी कोई ऐसी बीमारी है जिसका इलाज मेडिकल साइंस में नहीं मिल रहा, तो मायूस ना हो, अल्लाह की तरफ रुजू करें, मसनून इलाज अपनाएं और सूरह बकरा की तिलावत से अपने घरों को महफूज करें। जादूगर जितना भी ताकतवर क्यों ना हो, अल्लाह के एक नाम के सामने इसकी कोई हकीकत नहीं। अल्लाह हम सब को हासदीन के हसद और शरीरों के शर से महफूज रखे, आमीन। जादू की नई किस्म देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।